السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا دوسرا چپٹر دیکھیں گے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں دروس اللغت العربیہ وی عبد الرحیم کی مدینہ بکس، پہلا پارٹ، لیکچر نمبر 3، چپٹر نمبر 2، لیسن نمبر 2 اور اس چپٹر میں ہمیں پڑھنا ہے ذالک. اس چپٹر میں ہم نے پڑھا ہے ذالک. پہلے ہم نے پڑھا تھا ہذا. ہذا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے دس، اس میں اشارہ، یہ قریب، مذکر، قریب، مذکر، چاہے پھر وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، مفرد، قریب، مذکر چیز کی طرف اس سے اشارہ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہا جو ہوتا ہے، ہذا میں ہا جو ہوتا ہے، ہا یہ پہلا ہا، یہ اٹینشن کے لیے، سیکھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ذا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے، ہذا دس. اب ہمیں پڑھنا ہے دوسرا ذالک. ذالک اور یہ ہذا اور ذالک دونوں جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں اسماء الاشارہ، یعنی ایسے ناؤنز جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں، جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر بھی ذا ہے، یہاں پر بھی ذا ہے، ذالک میں بھی ذا ہے اور ہذا میں بھی ذا ہے. ٹھیک ہے، ہذا میں بھی ذا ہے. اور ذالک میں جو ذا ہوتا ہے، شیخ کہتے ہیں ذالک از پروناؤنسڈ ذالک بٹ اٹ از ریٹن وداؤٹ الف. ذالک کو ذالک پڑھا جاتا ہے مگر اس میں الف بیچ میں، یعنی اس کو یہ اصل میں ہے ذالک مگر پڑھا جاتا ہے اس کو ذالک. ٹھیک ہے، ذالک ذا. اور لام اس میں جو ہوتا ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے اس میں فارنس، دوری کو. اس لیے ذالک جو ہوتا ہے، ذالک اور ہذا میں کیا فرق ہے؟ ذالک کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ، یعنی یہ اسم اشارہ ہوتا ہے بعید، مذکر، مفرد کے لیے. بعید یعنی دور، مذکر، مفرد کے لیے. ٹھیک ہے، اسے شیخ کہتے ہیں ان دس لیسن وی لرن دی یوز آف ذالک میننگ دیٹ اینڈ واو. واو جو ہے یہ حرف ہے، اسے حرف عطف ہم کہتے ہیں، اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں، خاص طور پر جب یہ دو چیزوں کے درمیان آتا ہے، میننگ اینڈ. فی الحال ہمیں یاد رکھنا ہے کہ واو جو ہے یہ حرف ہے، پارٹیکل ہے، یہ اسم اور ورب نہیں ہے، یہ پارٹیکل ہے. اس کا مطلب ہے اینڈ. مثلا هذا بيت، this is a house، وذلك مسجد and that is a mosque. This is a house and that is a mosque. ذلك is pronounced ذلك but it is written without alif. The word wow is written close to the following word. wow جو ہوتا ہے یہ اپنے آگے والے بعد والے ورڈ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. مثلا انگلش میں جب ہم لکھتے ہیں جب اینڈ، تب ہم اینڈ سے پہلے بھی اور اینڈ سے اینڈ کے بعد بھی اسپیس ڈالتے ہیں، مگر عربک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. واو سے پہلے اسپیس ڈالتے ہیں لیکن واو کے بعد اسپیس نہیں ڈالتی. واو اپنے بعد والے ورڈ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. شیخ کہتے ہیں الدرس الثانی ذالک. ہم نے دیکھا کہ یہ ذا ہے، اس میں الف ہے مگر وہ پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے. ذالک اور اسی طرح ایک اور ورڈ ہے ذا کا، یہ دونوں سیم ہے. ذالک بھی کہہ سکتے ہیں اور ذا کا بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب ہم ذالک لکھیں گے تب ہم وہ الف کے بغیر لکھیں گے، اگر ذا کا لکھیں گے لام ہٹائیں گے تو تب ہم الف لکھیں گے. ذالک اور ذا کا. جیسے ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نجم وہ تارا ہے، ھذا مسجد یہ مسجد ہے، و اور ذالک بیت وہ گھر ہے. دیکھیے مسجد نزدیک بنی ہوئی ہے، گھر دور بنا ہوا ہے. ھذا حصان یہ گھوڑا ہے، وذالک حمار اور وہ گدھا ہے. گھوڑا نزدیک بنا ہے اور گدھا دور بنا ہوا ہے. یہ گھوڑا ہے نزدیک چیز کی طرف اشارہ ھذا سے، دور چیز کی طرف ذالک سے. مگر دونوں چیزیں جو ہونی چاہیے وہ میسکولائن ہونی چاہیے، میسکولائن اور سنگولر ہونی چاہیے. میسکولائن سنگولر ہونی چاہیے، چاہے پھر وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. مگر ھذا اور ذالک میں کیا فرق ہے؟ ھذا نزدیک کے لیے ہے اور ذالک دور کے لیے ہے. پھر کہتے ہیں اذالک قلب، کیا وہ کتا ہے؟ دیکھیں دور بنا ہوا ہے اس لیے ذالک. لا نہیں، لا جو ہے یہ حرف جواب ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ یہ حرف جواب ہے، یعنی ایسا پارٹیکل جسے ہم جواب دیتے ہیں. فی الحال ہمیں یاد رکھنا ہے لا جو ہے یہ حرف جواب ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نو. ذالک کتن نہیں، وہ بلہ ہے. ذالک کتن، کتن دور ہے. ذالک ما ذالک وہ کیا ہے، وہ کیا ہے دور، چارپائی. ذالک سریر وہ چارپائی ہے. پھر کہتے ہیں من ھذا ومن ذاک یہ کون ہے اور وہ کون ہے. ھذا مدرس یہ مدرس ہے، وذالک امام اور وہ امام ہے. امام یعنی امام مسجد کا امام. پھر کہتے ہیں ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک حجر وہ سٹون ہے، پتھر ہے، وہ پتھر ہے. حجر کہتے ہیں سٹون کو.
फिर कहते हैं हादा सुक्कर, सुक्कर कहते हैं शुगर को, वज़ालिका लबन, और वो दूध है, लबन कहते हैं मिल्क को। सुक्कर जो है, काफ पर शद्दा है, ये 2 बार यह हरकत ये अल्फाबेट पढ़ा जाएगा। सुक, पहले काफ पर सुकून, का रुन, फिर इन दोनों काफों को एक ही लिखा जाता है, इन दोनों काफों को फिर एक ही लिखा जाता है, और ऊपर दिया जाता है, ऊपर इनका इसको दिया जाता है शद्दा, बनता है सुक्करुन, सुक्करुन। अच्छा, इस लेसन में अब हमने क्या पढ़ा? इस लेसन में हमने पढ़ा ज़ालिका। ज़ालिका ये क्या है? ज़ालिका इस्मु इशारतिन, ज़ालिका इस्मु इशारतिन, ये इसमें इशारा है किसके लिए? लिल मुफरद सिंगुलर, अल मुज़क्कर मुज़क्कर, अल बईद बईद के लिए, अल आकिल व गैर आकिल, चाहे फिर वो आकिल हो या गैर आकिल हो। ज़ालिका ये भी इसमें इशारा है सिंगुलर मुफरद मुज़क्कर मैस्कुलाइन बईद के लिए, दूर चीज के लिए, फार चीज के लिए। आकिल की मिसाल ज़ालिका रजुलन, गैर आकिल की मिसाल ज़ालिका नजमुन, ये वो आदमी है, वो तारा है। ज़ालिका मुदर्रिसुन, वो मुदर्रिस है। ज़ालिका बैतुन, वो घर है। ज़ालिका तालिबुन, वो तालिब इल्म है। ज़ालिका हिसान, वो घोड़ा है। फिर कहते हैं मन हादा व मन ज़ालिका। मन हाजा से सवाल करते हैं, सवाल अनिल करीबिल आकिल। जब हम मन के साथ हाजा जोड़ेंगे, इससे हम सवाल करेंगे किसी आकिल करीब चीज के मुतलिक। इसी तरह जब हम मन से के साथ ज़ालिका जोड़ेंगे, इस एक्सप्रेशन से हम सवाल कर सकते हैं अनिल बईदिल अकिल, किसी दूर आकिल चीज के मुतलिक। करीब आकिल चीज के मुतलिक सवाल, मन हाजा, हाजा मुदीर, ये कौन है? ये मुदीर है, हेड मास्टर है। मन ज़ालिका, वो कौन है? ज़ालिका मुदर्रिसुन, वो टीचर है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा इमामुन, ये इमाम है। मन ज़ालिका, वो कौन है? ज़ालिका तालिबुन, वो तालिब इल्म है। इसी तरह मा हाजा और मा ज़ालिका। मा हाजा सुआलुन अनिल करीब गैर आकिल, जब हम इस सेंटेंस को ऐसे लाएंगे, इससे हम सवाल करेंगे किसी करीब गैर आकिल चीज़ के मुतल्लिक। अगर हम कहेंगे मा जाका सुआलुन अनिल बईद गैर आकिल, इससे सवाल करेंगे किसी बईद गैर आकिल चीज़ के मुतल्लिक। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये पत्थर है। मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका लबन, वो दूध है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हिमारुन, ये गधा है। मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका कितुन, वो बिल्ला है, वो बिल्ला है। फिर कहते हैं तमरीन एक्सरसाइज, इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। हादा सुक्करुन, ये शुगर है। व ज़ालिका लबन, और वो मिल्क है। मन ज़ालिका, वो कौन है? मन कौन? हु, आकिल के मुतलिक सवाल। ज़ालिका इमाम, वो इमाम है। अज़ालिका कितुन, क्या वो बिल्ला है? ला, नहीं। ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। मा हादा, ये क्या है? क्या? व्हाट, गैर आकिल, ये हादा हजर, ये पत्थर है। इस लेसन में जो नए वर्ड्स आए, अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स, वह इमामुन, हजरुन, सुक्करुन, लबनुन। इमाम, इमाम को कहते हैं मस्जिद का इमाम। हजरुन कहते हैं पत्थर को। सुक्करुन कहते हैं शुगर को। लबनुन कहते हैं मिल्क को। जैसे यहाँ पे भी लिखा है इमाम, इमाम को कहते हैं सुक्करुन, शुगर को कहते हैं। हजरुन, स्टोन को कहते हैं। और लबनुन, मिल्क को कहते हैं। लबनुन, मिल्क को कहते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम अ, देखने वाले हैं कि कब नाउन को तनवीन लगती है, डबल हरकत लगती है, और कब नहीं लगती है, उसकी वजह क्या है। और ये तनवीन जो होती है, ये याद रखे, तनवीन डबल हरकत ये साइन होती है किसकी? नाउन की। तनवीन खास होता है नाउन के साथ। अगर हमें कोई कहेगा कि नाउन को पहचानने के लिए क्या साइन है, हम कहेंगे कि उसकी एक साइन है तनवीन। ठीक है, तनवीन। कभी हम देखते हैं कि नाउन, कोई नाउन होता है इमा, उस पर 2 हरकतें होती है, और वही नाउन होता है उस पर एक ही हरकत होती है, इमामुन, अल इमाम। ये वजह हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कि कब एक हरकत लगती है नाउन पे और कब डबल हरकत लगती है। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और नेक्स्ट लेसन को पढ़ने से पहले इंशाल्लाह ताला हम ये बुनियादी बात देखेंगे। नेक्स्ट लेसन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उससे पहले हम देखना है अल जुमलतुल इस्मिया के मतलब नॉमिनल सेंटेंस मतलब। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। इसी तरह अरबिक में भी सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ऐसे वर्ड्स जो बने हुए होते हैं हुरूफुल हिजाइया से, अलिफ बा ता या से, और ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए अरब ने कोई माना रखा है और जो कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं मोहम्मद इज ए स्टूडेंट, हामिद इज सिक। कहते हैं द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी सेंटेंस आर ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। सेंटेंस के जो बुनियादी अरकान होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट नेम्स ए पर्सन, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई चीज जिसके मतलब हम कोई बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट एक ऐसा स्टेटमेंट होते हैं जो हम
बनाते हैं किसके मुतलिक, सब्जेक्ट के मुतलिक. In other words, the predicate is the part of a sentence which expresses what is said about the subject. प्रेडिकेट सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो ये चीज हमें बयान करता है कि सब्जेक्ट के मुतलिक क्या कहा जा रहा है. इन द अबव टू सेंटेंसेस मोहम्मद एंड हामिद आर सब्जेक्ट्स, क्योंकि मोहम्मद और हामिद के मुतलिक हम कोई बात कर रहे हैं. इज ए स्टूडेंट एंड इज सिक आर प्रेडिकेट्स. ठीक है, इज ए स्टूडेंट ये मोहम्मद के मुतलिक प्रेडिकेट है, इज सिक ये हामिद के मुतलिक प्रेडिकेट है. अरबिक में हम सब्जेक्ट को मुब्तदा कहते हैं, प्रेडिकेट को खबर कहते हैं. इन अरबिक लैंग्वेजेस यानी जुमला इस्मिया के मुतलिक, जब हम जुमला इस्मिया बनाते हैं, नॉमिनल सेंटेंस बनाते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस कहते हैं. इन अरबिक लैंग्वेज देयर आर टू काइंड ऑफ सेंटेंसेस. द वन विच बिगिंस विद अ नाउन, ऐसा सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है, इज कॉल्ड नॉमिनल सेंटेंस, अल जुमलतुल इस्मिया. और जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो फेल से स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं अल जुमलतुल फ़िअलिया, अल जुमलतुल फ़िअलिया. फिलहाल हमें जुमलतुल फ़िअलिया के मुतलिक नहीं देखना है, हमें फिलहाल देखना है अल जुमलतुल इस्मिया के मुतलिक. और अल जुमलतुल इस्मिया जो होता है वो बनता है किससे, मुब्तदा और खबर से, मुब्तदा और खबर से. We shall discuss here only the nominal sentence. A simple nominal sentence is of this form. जैदुन आलिम, जैद आलिम है. फातिमा तो आलिमतुन, फातिमा आलिमा है. अलवलदु ज़कीयुन, लड़का ज़हीन है. अलबिंतु जमीलतुन, लड़की खूबसूरत है. देखिए जैद, फातिमा, अलवलद, अलबिंत ये सब नाउन से, और इन नाउन से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, इसलिए ये नॉमिनल सेंटेंस जुमला इसमिया है. और इन नाउन के मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैद के मतलब कह रहे हैं कि वो आलिम है, फातिमा के मतलब कह रहे हैं कि वो आलिमा है, वालद के मतलब कह रहे हैं कि वो ज़की है, बिंत के मतलब कह रहे हैं कि वो क्या है, वो खूबसूरत है. जस्ट लाइक इन इंग्लिश ए नॉमिनल सेंटेंस इन अरबिक हैज टू पार्ट्स. जुमला इसमिया जो होता है अरब के भी उसके दो बुनियादी रुकन होते हैं, मुब्तदा और खबर. द नाउन विद विच ए नॉमिनल सेंटेंस बिगिंस, ऐसा इसम जिससे जुमला इसमिया शुरू होता है, उसे हम कहते हैं मुब्तदा. और दूसरा पार्ट जो मुब्तदा के मतलब कोई बात कह रहा है, उसे हम कहते हैं खबर, प्रेडिकेट. ठीक है, इसलिए जुमला इसमें जो होता है वो इन दो चीज़ों से बनता है. अब हमने क्या सीखा फिलहाल आज तक, फिलहाल हमने ये सीखा कि अरबिक में जो कलिमा होता है, वर्ड होता है, वो तो तीन किस्म का होता है. अरबिक में जो वर्ड होता है वो कितने किस्म का होता है, वो तीन किस्म का होता है. इस्म, फ़िअल और हर्फ, नाउन, वर्ब और पार्टिकल. जैसे हमने आज एक पार्टिकल देखा वाव, जिसका मतलब है एंड. और इन्हीं कलिमात से फिर सेंटेंस बनता है, चाहे फिर वो दो नाउन से बने, या नाउन और फेल से बने, या नाउन फेल और हर्फ से बने, जुमला बनता है. और वो जुमला दो किस्मों का होता है अरबिक में, जुमला इसमिया नॉमिनल सेंटेंस और जुमला फेलिया वर्बल सेंटेंस. जुमला इसमें नॉमिनल सेंटेंस उसके दो बुनियादी रुकन होते हैं. अल मुब्तदा जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, अल खबर जिसे प्रेडिकेट कहते हैं. मुब्तदा यानी ऐसा नाउन जिससे सेंटेंस की नॉर्मली शुरुआत होती है और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं. वो चीज़ जो हम मुब्तदा के मतलब कह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, खबर. ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टेटमेंट जो हम मुब्तदा के मतलब कह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खबर, उसे हम कहते हैं खबर. फिलहाल हमें नेक्स्ट लेसन में यही देखना है कि एक तो हमें देखना है कि कब नाउन पे तनवीन लगती है और कब नहीं लगती है, क्यों तनवीन लगती है और क्यों नहीं लगती है. ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में देखेंगे. और इसके साथ साथ जुमला इस्मिया के मुतालिक भी तफसील के साथ देखेंगे इंशाल्लाह ताला. फिलहाल हमने आज इस लेसन में क्या देखा, फिलहाल हमने आज इस लेसन में देखा ज़ालिका. फिलहाल हमने ये आसान लेसन था ज़ालिका, और हमने कहा कि ये इसमें इशारा है मुफरद मुज़क्कर बईद चीज़ के लिए, मुफरद मुज़क्कर बईद चीज़ के लिए. यहाँ पर जो है ये लेसन इख्तिताम पर पहुँचता है. वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.